اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الجن يعوذون وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ہمارے آج کے درس کا آغاز سورۃ الجن سے ہو رہا ہے جو مکی سورت ہے اور اس کا نمبر 72 ہے اور اس کے اندر 22 آیات ہیں. یہ سورت جو ہے مکی جس طرح عرض کیا اور اس کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور کے اندر جب آپ ایک مرتبہ سوق اوقاز تشریف لے گئے اور اوقاز میں بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور وہاں پر ادبی محفلیں بھی ہوتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی موقع ملتا تھا اسلام کی دعوت اور تبلیغ کا بغیر خطرات کے خوف کے آپ وہاں تشریف لے جاتے تھے. تو آپ کے ساتھ اس ٹرپ میں کچھ صحابہ کرام بھی تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں فجر کی نماز کے اندر قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ العلق اقرا جو ہے ان کی تلاوت فرمائی. اور جیسا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان کی فصاحت اور بلاغت ایک طرف، لیکن جب آپ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش الانی کی صلاحیت بھی عطا فرمائی تھی اور اسی لیے آپ نے فرمایا کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو خوش الہانی کے ساتھ اس کی تلاوت کیا کریں. اور اس کے آداب ہیں، اس کے بارے میں ہم تھوڑا بہت
ذکر کر چکے ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے اس کے بہت سے فوائد ہیں، اس کے اندر بہت سے اسباق ہیں، اور یہ صورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی جو صداقتیں ہیں ان پر ایک دلیل ہے۔ اس کے اندر ایک نہیں کئی دلائل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا کلام جو ہے وہ بھیجا۔ پہلی آیت کے اندر آپ دیکھیں، پہلی آیت کے پہلے لفظ کے اوپر آپ غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، قل آپ کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ دعویٰ نہیں فرما رہے، کیونکہ جنات کے بارے میں مختلف زمانوں میں مختلف عقائد رہے ہیں، اور عربوں کے درمیان بھی اس کے بارے میں مختلف عقائد ہوتے تھے، اور عرب جو ہے ان کو سپر نیچرل مخلوق سمجھتے تھے، اور خاص طور پر جب ان کا ریگستانوں میں، جنگلات میں اور ویرانوں میں جب گزر ہوتا تھا تو وہاں پر گزرنے سے، اندر جانے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ میں جنات کا جو سردار یہاں پر وادی میں ہو سکتا ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی ان کی سائیکی میں یہ بات موجود تھی کہ اس ویرانے میں کوئی جنات جو ہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پر پناہ مانگتے تھے اندر جانے سے پہلے، اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی پناہ، جس طرح کے ہم تعوذ پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں، تو وہ بھی اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، اور جنات کا جو سربراہ ان کی عقیدے کے مطابق ہوتا تھا اس سے وہ پناہ مانگتے تھے۔ اور ہمیں ایسی اطلاع بھی ملی ہے کہ یمن وغیرہ کے علاقوں میں کچھ جگہ تھیں جن کو وہ وادی جنات سے تعبیر کرتے تھے۔ تو بہرکیف اس طرح کی جو ہے وہ ان کے درمیان جو ہے یہ عقائد تھے، اور قرآن پاک کے اندر اس معاملے میں اور اسلام میں اس معاملے میں دو رائے نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جنات کا ذکر متعدد بار ہوا ہے، یہاں تک کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے، کہ میں نے جنات کے سامنے سورہ الرحمن کی تلاوت کی، اور جب بھی میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچتا تو جنات کی طرف سے جواب ملتا تھا کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کی ناشکری نہیں کرتے۔ اب یہ تو علم جو تھا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ آپ نے جنات کو قرآن کی سورہ رحمان تلاوت فرمائی، اور انہوں نے سنی، اور انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے انسانوں اور جنوں تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو ٹھکراتے ہو اور ان کو جھٹلاتے ہو۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ جب میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی یاد پڑھتا تھا تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ ہم اللہ کی کسی نعمت کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوق اوقاز کے اندر، فجر کی نماز کے اندر جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن کی آیات کی تلاوت فرمائی اور جنات نے اس کو سنا، تو انہوں نے سننے کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اور اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ نے اگر غور کیا ہو تو اس سے پہلے 26ویں سپارے میں
सूरह अल अहकाफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इस सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्न, कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त को याद करें कि जब हमने आ, कुरान क्या नाम है, जिन्नात के एक गिरोह को जो है आपकी तरफ हमने मुतवज्जे किया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सूरह जिन और सूरह अहकाफ के अंदर जिन जिन्नात का जिक्र है वो असल में एक ही वाक़या है, लेकिन ये एक ही वाक़या नहीं है बल्कि दो मुख्तलिफ वाक़यात हैं। उसकी वजह यह है कि सूरह अहकाफ में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर जिन्नात जो है वो जिक्र क्या करते हैं कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक किताब को सुना है और हम उस किताब के ऊपर ईमान लाए हैं। तो उलमाए कराम ये कहते हैं कि सूरह अहकाफ के अंदर जिन जिन्नात ने आपका कलाम सुना था वो जिन्नात मुसलमान थे और वो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से थे और मूसा अलैहिस्सलाम पर वो ईमान लाए थे। और फिर उन्होंने दोबारा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना, उनकी महफिल में आए तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि खामोश हो जाओ और अदब से ये कलाम सुनो, और उसके बाद वो अपनी कौम के अंदर गए और अपनी कौम को उन्होंने तबलीग फरमाई। दूसरी बात यह है कि मुसलमानों के अंदर ये अकीदा है कि जिन्नात भी मुकल्लफ हैं, जिस तरह इंसान मुकल्लफ हैं अल्लाह की इबादत के और अल्लाह तबारक व तआला की तालीमात पर अमल करने के, इसी तरीके से जिन्नात जो हैं वो भी मुकल्लफ मखलूक हैं। कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि सूरह अज़ारियात के अंदर अल्लाह ने फरमाया है 27वें पारे में कि मैंने जिन्नात और इंसान को नहीं पैदा किया मगर इस मकसद के लिए कि वो मेरी इबादत करें। तो ये जिन्नात का इस्लाम में जो कंसेप्ट है उसको कंफर्म करता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिन्नात की जो मुलाकातें हैं उसके बारे में मुख्तलिफ रवायत में तकरीबन 6 ऐसे मौक़े आए कि जिनमें जिन्नात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात की और आपके साथ कम्युनिकेशन की। अब ये जो बात सूरह जिन के अंदर है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मुझे वही की गई है, यानी ये सूरह जिन के अंदर तो इसका इजहार हो रहा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की दूसरी सूरतें भी होती थी जिसको आप वही गैर मतलूब कहते हैं, कि रिविलेशन विच वर नॉट रिसाइटेड, कुरान की तरह। तो उससे मतलब यह है कि जब जिन्नात ने आपका कलाम सुना तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए इत्तला दी कि जिन्नात ने आपका कलाम जो है वो सुना है। हालांकि जिन्नात जो है वो ऐसी मखलूक हैं जो इनविजिबल है। तो इसका जो बैकग्राउंड बताया जाता है वो ये है कि जिन्नात क्या करते थे कि वो आसमान के करीब जाकर बातों को सुनने की कोशिश करते थे। कौन सी बातों को? कि फरिश्ते जब कोई चीज लिखते थे तो उनकी कलम की जो आवाज थी उससे वो गेस करते थे। और फिर आके जिन्नात में से कुछ ऐसे थे कि जो इंसानों के साथ जिनका ताल्लुक था उनको वो बताते थे। तो ये एक अरसे तक ये बात चली, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने चूंकि जिन्नात भी मुकल्लफ हुए आपके पैगाम के, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका इंतजाम फरमाया कि अब तक जिन्नात जो आसमानों के करीब जाकर कान लगाकर बातों को सुनते थे वो दरवाजे बंद कर दिए
और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे सितारे छोड़े कि जब जिन्नात वहां करीब आते थे तो वो सितारे उनके ऊपर अटैक करते थे और उनको कोई ऐसा मौका जो है वो नहीं मिलता था। तो जिन्नात ने, रिवायत में आता है कि इब्लीस से ये बात पूछी कि क्या वजह हुई है कि जो दरवाजा था, थोड़ी सी ओपनिंग थी, हम आसमानों के पास जाकर सुनते थे कोई बातों को, अब वो तमाम डोर जो है, विंडोज बंद हो गई है, हमें वो बात नहीं पता चल रही है। तो एक रिवायत में है कि शैतान ने उनको मशवरा दिया, एक रिवायत में है कि उन्होंने आपस में मशवरा किया कि रुई जमीन में जाकर चेक करें कि कौन सी ऐसी तब्दीली आई है कि जिसकी वजह से ये डोर जो है वो बंद हो गया। तो इसी असना में वो रुई जमीन के अंदर प्रवास कर रहे थे कि उनको एक जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कुरान पढ़ती उन्होंने सुना। और कुरान जब उन्होंने सुना तो यहाँ जो लफ्ज कुरान आया है पहली आयत में, इस कुरान के दो मीनिंग हो सकती है। एक तो जो कुरान है कलाम अल्लाह तबारक व ताला वो, और कुरान का दूसरा जो तर्जुमा किया जाता है रिसाइटेशन, पढ़ना, उससे वो भी मुराद है कि हमने एक ऐसी तिलावत सुनी कि जो कि अजीब व गरीब है। एक दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमें पता चलती है कि जिन्नात की जुबान क्या होती है। जिन्नात को किस तरह पता चला कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को समझ गए। तो इससे ये पता चलता है कि जिन इलाकों में जिन्नात रहते हैं वो इंसानों की जुबानों को भी समझते हैं। और ये जो जिन्नात थे गालिबन उस इलाके के थे कि जहां उन्होंने देखा और उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम अरबी में उनको सुनने का मौका। तो उन्होंने, इसका मतलब ये है कि जिन्नात जो है वो अरबी जुबान को समझते थे। और दूसरे इलाकों में भी उलमा ने लिखा है कि जहाँ जिन्नात होते हैं वो इंसानों की जुबानों को समझते हैं। और एक तीसरी जो हकीकत है कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व ताला ने इसका मेंशन किया है कि अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया मिट्टी से और जिन्नात को पैदा फरमाया उसने आग से, आग के शोले से पैदा फरमाया। और फिर ये भी बता दिया कि उसने जिन्नात को इंसानों से पहले तख्लीक फरमाया। ये एक जो है अ, हमारे इस्लाम के अंदर जो है ये अकीदा है। और आजकल की इस मतलब एक मुतमद्दिन दुनिया के अंदर, खास तौर पर मगरबी दुनिया के अंदर, इस बात के ऊपर बड़ी तहकीकात हुई हैं और कुछ लोगों ने ये दावा किया है कि उन्होंने जिन्नात के साथ ताल्लुकात कायम की हैं और फिर ये कि जिन्नात ने उनको मुर्दा इंसानों से बातें करवाई हैं और फिर उन्होंने मुर्दा इंसानों के रिश्तेदारों को उसके बारे में उनके मैसेजेस और पैगाम जो हैं वो दिए हैं। ये बात कहाँ तक सच है इसके बारे में हमारा अ, कोई रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस्लाम ने इसके बारे में अपनी बातें बता दी हैं। और कोई इंसान अगर इस तरह का दावा करता है और वो भी वो इंसान के जिसके पास ईमान नहीं है, अकीदा नहीं है, महज उसने अपने तजस्सुस और रियाजत की बुनियाद पर वो दावा करता है, तो ही मे बी राइट, ही मे बी रॉन्ग, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो चंद बातें मजीद मैं आपके बारे में, इसके बारे में बताता हूँ कि जिन्नात के बारे में अरबों के यहाँ जो तस्वुर था। एक बहुत मशहूर वाकया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे मशहूर राफे बिन उमैर रदी अल्लाह अन्हु। और उनकी शोहरत की वजह यह बनी कि उनका कबूल इस्लाम का वाकया जिन्नात के साथ उनके इनकाउंटर पे हुआ। वो फरमाते हैं कि मुसलमान होने से पहले
वो जिन्नात के एक इलाके से यानी सहरा से गुजरे, और अरबों की ट्रेडिशन के मुताबिक उन्होंने दाखिल होने से पहले ये कहा कि मैं इस इलाके का जिन्नात का जो सरदार है उसकी पनाह मांगता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा मुझे कोई तकलीफ न पहुंचे। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊँटनी अपने साथ रखकर सो गया, लेकिन रात को मैंने ख्वाब में देखा कि कोई शख्स मेरी ऊँटनी को ज़िबह कर रहा है। तो ये जब मैंने ख्वाब देखा तो मैं घबरा गया और मैं उठ पड़ा, लेकिन मैंने देखा कि मेरी ऊँटनी सलामत है। तो मैंने कहा कि इस तरह का ख्याल है, मैं दोबारा सो गया। दोबारा कहते हैं कि मुझे इसी तरह ख्वाब आया तो मैं परेशान हो गया, फिर मैंने उठा तो मेरी ऊँटनी जो थी वो सलामत थी। तीसरी दफा जो है ये हुआ कि मैंने देखा कि एक तरफ एक बूढ़ा इंसान खड़ा हुआ है और एक तरफ एक नौजवान खड़ा हुआ है। उस नौजवान के हाथ में कोई हथियार है और वो मेरे मेरी जो जानवर है, सवारी है, उसको अटैक करना चाहता है। और उसके मुकाबले में वो जो बूढ़ा इंसान है वो उससे कह रहा है कि तुम इस ऊँटनी को तकलीफ मत पहुँचाओ। ये जो 3 जानवर हैं इनमें से एक ले लो और इसको तकलीफ मत पहुँचाओ और तुम यहाँ से चले जाओ। तो कहते हैं कि वो नौजवान एक बकरी या दुम्बा जो कुछ भी थी, छोटी मखलूक, उसको वो ले गया और मेरी ऊँटनी जो काँप रही थी, डरी हुई थी, सहमी हुई थी, उसको सुकून महसूस हुआ और वो नौजवान चला गया। उसके बाद वो जो बूढ़ा इंसान था, बूढ़ा जो था आदमी, उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर आए हो, तो तुमने किस किस्म की दुआ की है? तो मैंने कहा कि जी मैंने इसमें ये दुआ की थी कि यहाँ जिन्नात का जो सरदार है, मैं उसकी पनाह मांगता हूँ कि मुझे यहाँ पर कोई तकलीफ न पहुंचे। तो उसने कहा कि जो जिन्नात में से था और एक बूढ़े इंसान की सूरत में था, तो उसने ये कहा कि आपने आइंदा अगर आपको किसी सहरा में, वीराने में जाना हो, तो ये दुआ नहीं करना। तुमने ये दुआ करनी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की मैं पनाह मांगता हूँ। मैंने पूछा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है वैसे? तो उसने कहा कि ये अल्लाह के नबी हैं जो कि मबूस हो चुके हैं और एक ऐसे इलाके में रहते हैं कि जहाँ बहुत सारे खजूरों के दरख्त हैं वैसे। तो हज़रत राफ़े बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसकी जो अलामात थी, वो अलामात यस्रब मदीने के ऊपर ज़्यादा फिट होती थी। तो मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने कहा कि मैं उस शख्स से मुलाकात करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में ये जिन्नात के रईस ने मुझे बताया था। तो मैं मदीना में पहुँचा और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मुसलमान होने से पहले मुझे ये वाक़या सुनाया कि तुम्हारे साथ ये वाक़या हुआ है। तो उनके दिल के अंदर मज़ीद इस बात को तक़वियत पहुँची कि उस जिन्नात के रईस ने जो बात कही थी वो सच्ची थी और वो मुसलमान हो गए। ये है हज़रत राफ़े बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो इससे तस्दीक होती है कि जिन्नात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे और ये सूरह जिन के अंदर ये मज़ीद अ, इस बात को तक़वियत पहुँचती है कि सूक औकास के इलाके में जो नखला एक मकाम था और वहाँ फजर की नमाज में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की जो सूरतों की तिलावत की, तो जिन्नात मुसलमान हो गए। और सूरह अहकाफ के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात के एक गिरोह को आपकी तरफ भेजा और वो लोग थे कि जो जिन्नात ऑलरेडी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर भी ईमान लाए। तो ये 2-3 वाक़यात तो आपको बताते हैं कि जिन्नात जो हैं वो मुसलमान हुए और अहादीस के अंदर तकरीबन 6
ऐसे ओकेजन बयान किए गए हैं कि जिनके अंदर जिन्नात की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात होती है। एक रिवायत जो है वो हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला की तरफ दो रिवायतें हैं। एक रिवायत जो है उन्होंने जो सुनाई है और मरवी है वो मक्का में हुई, और एक रिवायत जो है वो मदीना में हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का में, मक्का से बाहर जो पहाड़ियां हैं वहां पर मुझे जाना हुआ रात को, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, आपने एक लाइन जो है ना वो ड्रॉ की, एक पूरा सर्कल बनाया, और मुझे फरमाया कि तुमने किसी हाल में भी इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना, इसी सर्कल के अंदर तुमने रहना है। तो हजरत और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे वहां से डिसअपीयर हो गए। तो कहते हैं कि मैंने वहां पर देखा कुछ लोगों को बोलते हुए सफेद लिबास के अंदर थे, और फिर मुझे परेशानी भी हो गई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है खुदा न खास्ता उनको कोई तकलीफ न पहुंची हो, तो आप सुबह के वक्त करीब तशरीफ लाए, और फिर मैंने आपसे अपनी जो मतलब है कि जहनी परेशानी थी उसका जिक्र किया, तो आपने फरमाया कि मेरे पास जिन्नात का एक डेलीगेशन आया था और उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी। और दूसरा वाकया मदीना पाक में हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था जन्नतुल बकी के पास, और वहां भी अल्लाह के रसूल से सबकी मुलाकात जो है वो जिन्नात के साथ हुई। और एक दूसरा वाकया जिक्र किया जाता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा जिन्नात का एक डेलीगेशन आया, और वो जिन्नात के डेलीगेशन के बारे में अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो मेरे पास आए थे और उनके दरमियान को डिस्प्यूट था, और वो मेरे पास आए थे कि मैं उनका डिस्प्यूट जो है वो सेटल करूं, और साथ साथ वो मुझसे खाना भी मांग रहे थे, तो मैंने उनको खाना भी दिया, और उनके दरमियान जो तनाजा था मैंने उसको भी सेटल किया। एक रिवायत हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान की है कि मदीना से बाहर एक दफा हुजूर पाक के साथ जिन्नात की मुलाकात हुई, और हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ भी ऐसी रिवायत है कि मदीना पाक से बाहर हुजूर पाक के साथ जिन्नात की जो है वो मुलाकात हुई। तो इन तमाम मुख्तसर जो मैंने वाकयात बयान की हैं, और कुरान पाक में जिन्नात का जो जिक्र है, इस तमाम से मतलब मुसलमानों का ये अकीदा जो है वो कन्फर्म होता है कि जिन्नात एक गैर मरई मखलूक है। अल्लाह तबारक व ताला ने उनको मुख्तलिफ इलाकों में जो ज़ुबानें बोली जाती हैं, उस ज़ुबान पर दस्तरत अता फरमाई है, और ये कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने इस बात की भी सलाहियत अता फरमाई है कि वो अपनी शेप को जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ये थोड़ी-सी मतलब बैकग्राउंड में ये बातें अर्ज़ करना ज़रूरी थी, ताकि सूरह अल जिन को और जिन्नों का जो इस्लाम के अंदर जो कंसेप्ट है, वो हमारे ज़हनों के अंदर जो है वो वाज़ेह हो जाए। तो दोबारा हम आते हैं कुरान पाक की सूरह जिन की पहली आयत की तरफ, कि अल्लाह ने फरमाया, कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए। देखिए, अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बयान करते तो लोग पता नहीं इसका क्या रिएक्शन लेते, लेकिन है कि अल्लाह ने फरमाया कि आप कहें बस। और ऐसा वाकया एक हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज के अंदर आप ने ये बड़ी अजीब सी बात हुई कि आपने फरमाया कि मैं तुम्हें अल्लाह की लानत भेजता हूँ और दूर हो जाओ। तो सहाबा कराम ने पूछा नमाज के बाद कि या रसूलल्लाह, ये बड़ी अजीब सी बात हमने देखी कि आप किसी से कलाम कर रहे थे। तो फरमाया कि हाँ, मेरे पास एक शैतान आया था और उसके हाथ में एक शोला था,
اور وہ مجھے جلانا چاہتا تھا، تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگی، اور پھر میں نے سوچا کہ اس کو میں پکڑتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو اس کی شکل کے اندر دیکھا، اور فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو پکڑوں اور اس کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دوں، تاکہ لوگ دیکھیں اور بچے آس کے ساتھ جو ہے نا آ کر کھیلے۔ لیکن پھر مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا جو ہے وہ یاد آئی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا تھا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس خواہش کی رسپیکٹ کرتے ہوئے اس کو میں نے اریسٹ نہیں کیا، اور اس کو میں نے جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ اور پھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا فرمائی تھی، اس حکومت کا ایک اسپیکٹ یہ تھا کہ جنات پر آپ کو کنٹرول تھا، اور جنات آپ کے تابع تھے۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ ملکہ بلقیس کا تخت کون یہاں پر مجھے فاسٹسٹ پاسبل، مطلب ہے کہ ٹائم کے اندر مجھے پہنچا سکتا ہے، قال عفریت من الجن، جو ایک بہت بڑا جن تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے آپ کا ملکہ بلقیس کا تخت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک عالم نے، کان عندہ علم من، جس کے پاس کتاب کا نالج تھا، اس نے کہا کہ آنکھ کے پلکتے ہی، پلک کے جھپکتے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کا تخت یہاں پر ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اسی لمحے اس کا تخت یہاں پر موجود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ ان کی جو مطلب ہے کہ تابعین تھے، اس میں جنات بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو انسان تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی کرامات جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت ہے کہ آپ خود دعویٰ نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ یہ فرما دیں کہ استمع نفر من الجن میں۔ دیکھیں عربی زبان میں یہ جو لفظ ہے سین میم عین، جس کو آپ کہتے ہیں سماعت، سننا، ایک ہے سمع، آپ بات کر رہے ہیں میں آپ کو سنتا ہوں، تو یہ اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہیئرنگ، آئی ہرڈ یو۔ لیکن جب استماع ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے غور سے سننا، لسن ویری کیئرفلی، یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ ہے کہ جنات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلاوت تھی اس کے اندر اپیل محسوس ہوئی، اور وہ جہاں پر کے چل رہے تھے وہاں ٹھہر گئے، اور انہیں آپ کی تلاوت کو سنا۔ تو نفر من الجن، نفر سے مراد ہوتا ہے 3 سے 10 کے درمیان، تو مطلب ہے کہ اتنی ان کی تعداد تھی، اور انہوں نے آپ کی تلاوت کو غور سے سنا۔ فقالو انا سمینا، دیکھیں دونوں میں فرق دیکھیں، اللہ جو فرماتا ہے ان کے سننے کو، تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کان لگا کر سنا، غور سے سنا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ انا سمینا، وی ہرڈ۔ غور سے سننے کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے غور سے سنا ہے، غور سے سننے کے بعد انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کس کو؟ قرآن عجبا، ایک ایسی ریسائٹیشن کو، ایک ایسی تلاوت کو کہ جو عجیب و غریب ہے، یعنی عجیب و غریب اس معنی میں ہے کہ ہمیں اس سے پہلے ایسی کوئی چیز سننے کو نہیں ملی۔ تو یہ انہوں نے کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ یہدی الی الرشد فآمنا به۔ اب اگر جو روایت جس میں کہتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ اور سورہ اقرا جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی تھی، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر تو بہت سی باتیں ہوں گی، تو انہوں نے جو کنکلوژن نکالا سننے کے بعد، یہدی الی الرشد، کہ یہ جو کلام ہے یہ کیا کرتا ہے؟ گائیڈ کرتا ہے رشد، ہدایت کی طرف، یہ ہدایت کی طرف یہ بلاتا ہے۔ فآمنا به، ہم اس پر ایمان۔ اب یہ دیکھیں کہ ان الفاظ کے اندر کہیں بھی اس بات کا
इजहार नहीं हो रहा है कि उन्होंने जब कलाम को सुना तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादत पढ़ी। इसका नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि हम ईमान लाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फरमाया कि आप ये फरमा दें कि आपके कलाम को उन्होंने सुना, लेकिन उस मौके पर उन्होंने शहादत अल्लाह के रसूल के सामने नहीं पढ़ी, बल्कि उन्होंने जब ये कलाम सुना तो उनको यकीन हो गया कि ये अल्लाह का कलाम है और ये अल्लाह के सच्चे रसूल है। अब आप यहाँ पर जो नुक्ता गौर करने का है, वो बहुत अहम है वैसे। ये सूरा जो है ये नाज़िल हुई है मक्की ज़िंदगी के अंदर, और मक्की ज़िंदगी के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना ऑन द डेली बेसिस सुबह-शाम कुरैश के साथ एनकाउंटर होता है। और उसके अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज मेरे ऊपर ये आयत नाज़िल हुई है, आज ये सूरत नाज़िल हुई है। खुदा की तौहीद के बारे में, आखिरत के बारे में, यही मतलब कॉमन बातें थी जो होती थी। उनको ये अब ये बात सुननी चाहिए कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नखला के मकाम पर एनकाउंटर हुआ है, उन्होंने अल्लाह के कलाम को सुना और विदाउट एनी प्रेजुडिस उन्होंने कलाम को सुनते ही ये कंक्लूजन किया कि ये कलाम सच्चा है और जिसके ऊपर ये कलाम नाजिल हुआ है वो सच्चा रसूल है। तो वो भी मखलूक हैं, वो भी मुकल्लफ हैं, और उन्होंने तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनकर फौरन आमन्ना कह दिया, और तुम्हारे सामने सुबह शाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का कलाम पेश करते हैं, और तुम्हारे दरमियान उनकी पैदाइश हुई, वो जवान हुए, इस उम्र में पहुंचे, फिर उन्होंने नबूवत का दावा किया। तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को नहीं मानते? तो इससे ये नतीजा निकलता है कि हर ऐसी मखलूक कि जिसके अंदर इंसाफ होगा, जिसके अंदर रीजनिंग होगी, लॉजिक को समझेंगे, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनेंगे तो वो मान लेंगे। और इसकी तहकीक, इसका सबूत आपको मौजूदा ज़माने में हो रहा है। मौजूदा ज़माने में कि जहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हमें इसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मतलब है कि सोशल मीडिया के ज़राए हैं, उसके अंदर पता चल रहा है कि कई लोग जिन्होंने कुरान को पहली दफ़ा पढ़ा, पहली दफ़ा सुना, वो लोग जो है वो मुसलमान हो गए। लेकिन जिस आदमी ने अपनी आँखें बंद कर ली हों, अपने कानों को बंद कर लिया हो, जिन्होंने अपने दिलों पर जो है कुफ़्र ताले लगा ली हों, कुरान उनके दिलों में जो है वो नहीं जाएगा। वो हमेशा इस तरह रहेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? वलन नुश्रिक बिरब्बिना अहदा, और हम नेवर एवर हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराएंगे। ये बात भी कुरैश मक्का को याद दिलाई जा रही है। ये कौन लोग जिन्नात कह रहे हैं? जिन्नात वो कह रहे हैं कि जो मुशरिक थे पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुनने से पहले, वो उनके यहाँ भी शिर्क की मतलब है कि ये कुफ्र की और शिर्क की बातें थी। लेकिन जब उनके पास हकीकत आ गई, उन्होंने हकीकत को तस्लीम कर लिया और उन्होंने कहा कि हम शिर्क से तौबा करते हैं। तो इंसान, हज़रत इंसान को इसके अंदर दावत दी जा रही है कि आप भी हठधर्मी से बाज आ जाएँ। आपको हकीकत नज़र आ जाए तो उसको मान लें। और इससे पता चलता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मेहनत फरमाई लोगों को इस्लाम की तरफ लाने में, इस्लाम पर कन्विंस करने के लिए। लेकिन अ, उसमें कुछ लोग तो जो थे, वो फ़ौरन मुसलमान हो गए। बाज़ ने मतलब है कि हुज्जतें की, और बाज़ जो है उन्होंने इंतज़ार किया, यहाँ तक कि फ़तह मक्का हुआ और उसके बाद दूसरी फ़ुतूहात हुई, तो वो मुसलमान हुए। और फिर उन्होंने क्या कहा? व अन्नहु तआला जद्दु रब्बिना मत्तखज़ साहिबतन वला वलद। अब शिर्क की जो भी सूरतें थी उनके दरमियान, वो उसको भी रिफ्यूट कर रहे हैं। व अन्नहु तआला, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला तआला, वो बहुत ही बुलंद है, बहुत ही बुलंद है।
और जद्दो के माने में है बहुत ही अजीम है। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो बहुत ही अ, बुलंद है और बहुत ही अजीम है। मत्तखद साहिबतन वला वलदा। इसके अंदर भी बहुत सी बातें हैं कि कुरैश के जो फरसूदा अकायद थे दूसरे लोगों के, उसको भी वो रिफ्यूट कर रहे हैं, और कहने का मकसद ये है कि जिन्नात के अंदर भी इस तरह की बातें थी, इस तरह के अकायद थे। क्या कहा उन्होंने? कहा कि अल्लाह तबारक व ताला बुलंद है, वो इंतहाई अजीम है, उसने न तो बीवी को इख्तियार किया और न ही उसने आ, बेटा जो है वो चुना है। ये अकायद जो थे अरबों के अंदर भी थे, और ये अकायद जो थे वो जिन्नात के अंदर भी थे। अब जिन्नात ने जब इस्लाम को कबूल किया तो शिर्क और कुफर की तमाम बातों को उन्होंने रिफ्यूट कर दिया। और इसके अंदर कुरैश के लिए, मक्का वालों के लिए ये दर्स है कि कहने के लिए तुम लोग कहते हो कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह खालिक है, अल्लाह राजिक है, जमीन व आसमान का वो मालिक है, लेकिन तुम उसकी जो यूनिटी ऑफ वर्शिप है उसको नहीं मानते। लेकिन जिन्नात ने जब ये बात सुनी और वो हकीकत को पहुंच गए, तो उन्होंने तमाम शिरकिया जो अकायद थे उनको रिफ्यूट कर दिया। और फिर वो अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं वैसे कि हमारे अंदर ये शिरकिया बातें कैसे आई। वो कहते हैं वो अन्नहु कान यकूल सफीहुना अलल्लाहि शतता। और ये कि हमारा जो यानी बेवकूफ फर्द था, इससे एक रिवायत में कहता है कि सफी होना से मुराद है शैतान। इससे मुराद सफी होना से मुराद शैतान है। और अगर आप इसको जनरलाइज करेंगे तो इससे मुराद क्या होगा कि जिन्नात में जो बेवकूफ थे, वो बेवकूफ क्या कहते थे? अल्लाह शतता, अल्लाह के बारे में वो गुमराही की बातें करते थे। शैतान को अगर मंसूब किया जाए तो शैतान भी इसके ऊपर कहा जाता है कि उस पर अप्लाई होगा। और जिन्नात में जो बेवकूफ थे उनके ऊपर भी जो है ये बात अप्लाई होती है कि वो गुमराही की बातें करते थे। ये तो वो बता रहे हैं अपनी हिस्ट्री कि हमारे यहाँ शिर्क और बिदअत और कुफ्र जो है वो कैसे फैला। और ये है कि भाई जिन लोगों ने शिर्क की बातें फैलाई वो बेवकूफ थे। उस वक्त तक हमारी आंखें बंद थी, और जिन्नात के मुआशरे के अंदर ये चीज जो है वो फैल गई थी। लेकिन ये कि अल्लाह तबारक व ताला की इसके अंदर हिकमतें हैं। वैसे ये जो वाकया हुआ, ये वाकया हुआ अल्लाह तबारक व ताला की तदबीर से, अल्लाह की तकदीर से। और फिर इस वाकये के जो फवायद हैं, जो हिकमतें हैं, उनको एक्सपोज किया जा रहा है। और अल्लाह तबारक व ताला ये बताना चाहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नबी नहीं है, बल्कि जिन्नात भी मुकल्लफ हैं। और ये कि जिन्नात आपके ऊपर जो है वो इस्लाम लाए, तो ये यूनिवर्सलिटी ऑफ द मैसेज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जो है ये दलील है। और ये है आयत नंबर 4। यहाँ पर हम लोग इख्तिताम करेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा सेशन में हम मजीद जो आयात हैं इस मौजू की और इस सूरत की, उनके बारे में इंशाअल्लाह बात करेंगे। लेकिन ये कि ये चंद जो फंडामेंटल बातें थी जिन्नात के बारे में, और इस्लाम में जिन्नात का क्या तस्वुर है, उसके बारे में सूरह जिन को समझने के लिए जो है ये मुनासिब थी, इसलिए मैंने अर्ज की हैं। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि जो बात भी हमने इनकी तिलावत और तशरीह के दौरान हमने की हैं, अल्लाह उनको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।